السلام علیکم۔ آج کی کہانی میں آپ سبھی کو دل سے خوش آمدید۔ میں ایک بنگلے پر دائی کا کام کرنے لگی۔ میں اس بچے کو دودھ پلاتی تھی جبکہ اس کی ماں نوکری کرتی تھی۔ ایک دن اس کی ماں نے مجھے بچہ اور کچھ رقم دی اور بولی، اس بچے کو لے کر بھاگ جاؤ، اس کا باپ اسے مار دے گا۔ میں بھی خوف سے اس بچے کو اٹھا لے آئی اور اسے پالنے لگی، پر ایک دن اچانک وہ بچہ بیمار ہو گیا۔ میرے پاس علاج کے پیسے نہ ہوئے تو اسے واپس اس کے گھر لے گئی، پر میرے ہوش اڑ گئے جب اس بچے کے باپ نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ میرا جسم لرزنے لگا پر پاؤں تلے زمین نکل گئی جب اس نے بولا کہ ارے اسے تو بہت تیز بخار ہے، اس کی تو حالت بہت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے احمد کو جب بہت بیمار دیکھا تو میری جان نکلنے لگی تھی۔ وہ بچہ میرے پاس امانت تھا اور میں اسے اس طرح نہیں کھو سکتی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ وہ ٹھیک ہو جائے، بہت ٹوٹکے آزمائے اور علاقے کی ڈسپنسری سے اس کے لیے دوا بھی لے کر آئی، لیکن اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اسے کسی مہنگے اور بڑے اسپتال لے کر جا سکوں۔ بس بے بسی سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ احمد میری جان ہے اور میری جان اس میں بستی تھی۔ اب اسے اس حالت میں دیکھنا میرے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھا۔ میں بے حد پریشان ہو چکی تھی۔ اب کیا کروں، کس طرح اس کا علاج کراؤں؟ میں نے پریشانی میں اپنے آپ سے جیسے سوال کیا، لیکن مجھے اس کا جواب معلوم نہیں تھا، کیونکہ میرے پاس جو پیسے ہوتے تھے وہ گھر کے اخراجات قیمت میں نکل جاتے، اور اب جب احمد بیمار پڑا تھا تو میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی نہیں تھی۔ میں کیسی ماں تھی؟ یا اللہ، یہ تو نے مجھے کس آزمائش میں ڈال دیا؟ میں بے اختیار اللہ کے آگے گڑ گڑائی۔ بہت سوچنے پر بھی جب مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تو ایک خیال سے اچانک میری آنکھیں چمکنے لگی۔ اس خیال کے آگے آنے کی دیر تھی کہ میں نے اسی پر عمل کرنے کی ٹھان لی، کیونکہ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب ایسا ہی کروں گی۔ میں نے احمد کو کپڑے میں لپیٹا اور اپنے ساتھ سینے سے لگا لیا۔ میرے سینے سے لگتے ہی وہ خاموش ہو گیا تھا، ورنہ اس سے پہلے وہ بخار کی شدت اور بیماری کی تکلیف کی وجہ سے بہت رو رہا تھا۔ اب جیسے وہ سنبھل گیا تھا، بہل گیا تھا، میں اسی طرح سینے سے لگائے اسے گھر سے باہر نکل آئی اور اب ایک جانے پہچانے راستے کی طرف اپنے قدم بڑھا چکی تھی۔ حالانکہ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں، لیکن اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ میں احمد کو یوں مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس تکلیف میں اسے دیکھنا میرے لیے زیادہ اذیت ناک تھا، اسی لیے میں نے دل پر پتھر رکھ کے یہ فیصلہ کیا تھا۔ میں سیدھی اس گھر کی طرف بڑھ گئی تھی جہاں پر میں نے ایک وقت گزارا تھا۔ چوکیدار نے پھر مجھے دیکھ کر فوراً دروازہ کھول دیا۔ میں سہمے قدم سے بڑھتی چلی گئی۔ میں رہائشی حصے کی طرف جوں ہی بڑھی تو سامنے سے مجھے صاحب آتے دکھائی دیے۔ انہیں دیکھ کر میں ایک دم سے ڈر گئی، لیکن اب چونکہ یہاں پر آ چکی تھی تو آگے کے معاملات مجھے خود سنبھالنے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو ہمت دی اور بڑے اعتماد کے ساتھ صاحب کے پاس گئی۔ انہوں نے جو ہی مجھے وہاں پر آتے ہوئے دیکھا تو جیسے خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گئے، اور جب انہوں نے میرے ہاتھ میں احمد کو دیکھا تو ان کے چہرے پر ایک چمک سی آ گئی تھی۔ میں گھبرا رہی تھی کیونکہ صاحب کے بارے میں مجھے ابھی بھی تحفظات تھے، لیکن صاحب ایک دم آگے بڑھے اور میرے ہاتھوں میں احمد کو دیکھ کر بے اختیار انہوں نے مجھے سینے سے لگا لیا، اور تبھی میرے کان میں ایک ایسی بات کہی جس سے میرے قدموں تلے سے زمین سرک گئی۔ میرا نام سمینہ ہے۔ میں جب 20 برس کی ہوئی تو میرے والدین نے میری شادی کر دی، کیونکہ میرے بعد میری 3 بہنیں اور بھی بیٹھی ہوئی تھیں، اور ابا چونکہ کام سے دکان چلاتے تھے۔ علاقے میں ہی ان کی چھوٹی سی کریانے کی دکان تھی، جس کی وجہ سے وہ مشکل گھر کی روزی روٹی پوری ہوتی تھی، اور ابا سارا دن اس دکان پر بیٹھ کر گاہکوں کا انتظار کرتے رہتے تھے۔ ہم بہنوں نے گھر پر ٹیوشن پڑھا کر اور چھوٹی موٹی مزدوریاں کر کے اپنے اخراجات پورے کیے۔ ایسے میں جو پہلا رشتہ آیا، اماں ابا نے بنا سوچے سمجھے اس رشتے کو ہاں کر دی اور میری شادی مقرر کر دی۔ میں اتنی جلدی شادی کے حق میں نہیں تھی، لیکن اپنے گھر کے حالات دیکھتے ہوئے میں نے بھی حامی بھر دی۔ یوں میں رخصت ہو کر ماجد کے سنگ اس کی زندگی میں چلی آئی۔ ماجد کا گھر بھی ہمارے گھر جیسا ہی تھا۔ ماجد ایک دفتر میں کلرک کی نوکری کرتا تھا۔ اس کی تنخواہ مناسب تھی۔ ماجد کے اوپر گھر کی بہت زیادہ ذمہ داریاں تھیں، کیونکہ اس کے بعد اس کے 5 بہن بھائی اور بھی تھے، جن کی ساری ذمہ داری کلی طور پر ماجد کے اوپر تھی، کیونکہ ماجد کا باپ 2 سال پہلے انتقال کر گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ماجد نے اپنے بہن بھائیوں کی ذمہ داری اٹھا لی تھی۔ اس کی ماں اسی وجہ سے ماجد سے بہت زیادہ خوش تھی۔
माजिद ने जब अपनी शादी की ख्वाहिश का इजहार किया तो उसकी माँ अभी उसकी शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर माजिद की शादी हो गई तो उसके बाकी बहन भाइयों की जिम्मेदारी कौन उठाएगा, घर के बाकी अखराजात कौन पूरे करेगा। क्योंकि हर माँ की तरह उसे भी इस बात का डर था कि अगर माजिद अपनी बीवी की बातें सुनने लग गया तो कहीं हमें अपनी जिंदगी से निकाल ही ना दे। यही वजह थी कि उसने जितनी देर हो सकता था माजिद को टाला था। इसी दौरान माजिद की उम्र 30 वर्ष हो चुकी थी और उसकी बहन भाई भी थोड़े बड़े हो चुके थे। माजिद ने अब की बार माँ को सख्ती से जब अपनी शादी के बारे में कहा, उसको माँ को मनाने में देर हो चुकी थी। उसके साथी और दोस्तों की शादियाँ कब की हो चुकी थी और अब उनके तो बच्चे भी थे। माजिद जब कभी उनकी तरफ देखता तो उसे इस बात का एहसास होता कि उसकी माँ उसकी शादी की फिक्र नहीं करती, जबकि उसके साथ के दोस्त या यार सब के बाल बच्चों वाले हो चुके थे। इसी बात की वजह से माजिद बार बार माँ से इसरार करता और अब तो उसने जैसे माँ को जबरदस्ती इस बात से मनाना था। माजिद की माँ ने भी जब माजिद के तेवर देखे तो फौरन हामी भर ली और जल्द ही हमारे घर रिश्ता भेज दिया। ये रिश्ता एक रिश्ता करवाने वाली की तौसत से हुआ था। अम्मा अब्बा को माजिद की इतनी उम्र पर कोई एतराज नहीं था, क्योंकि मैं भी अब 20 वर्ष की हो चुकी थी, जबकि हमारे यहाँ तो 16 वर्ष की उम्र की शादी करते हैं। इस हिसाब से तो मेरी शादी भी देर से हुई थी। मैं रुखसत होकर जब माजिद के संग आई तो माजिद ने मेरा बहुत खुशगवार और दुल्हाना इस्तकबाल किया। चूँकि वो बड़ी उम्र का मर्द था, उसे मैं कम सन लगी और खूबसूरत लगी और वो शादी की पहली रात ही जैसे मेरी मोहब्बत में मुब्तला हो गया था। उसने वालाहाना तौर पर अपनी मोहब्बत का इजहार किया था और मैं उसकी मोहब्बत में सरशार हो गई थी। हालांकि माजिद एक वाजबी सी शक्ल का था, जबकि मैं बहुत ही खूबसूरत थी। शादी की अगली सुबह जब मेरी सास ने मेरे चेहरे के ऊपर खुशी और सुकून फैला देखा तो वो समझ गई कि मैं माजिद को पसंद आ चुकी हूँ और उसकी मोहब्बत बन चुकी हूँ। शादी के शुरू के दिन तो बहुत अच्छे गुजरे थे। माजिद रोज मुझे बाहर घुमाने के लिए ले जाता, खाना खिलाकर लाता, आइसक्रीम खिलाकर लाता और कभी कभार तो मेरे अम्मा अब्बा के घर भी ले जाता। शादी के शुरू के दिनों में हमने कुछ अपने अजीज रिश्तेदारों और दोस्तों की तरफ से दावतें भी उड़ाई थी। यूं ये दिन पलक झपकते ही गुजर गए थे, लेकिन जब अमली जिंदगी में कदम रखा तो आटे दाल का भाव पता चल गया। मेरी सास ने मेरे हाथों से हलवा पकवा कर सारे मोहल्ले में बांटा और उस दिन से घर की सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर डाल दी। मैं अपने घर में तो इतना काम नहीं करती थी, लेकिन जहाँ पर आकर जब काम करने लगी तो मुझे सही मायनों में अंदाजा हुआ कि मेरी माँ कितना काम किया करती थी। यहाँ पर माजिद के छोटे बहन भाइयों के लिए खाना बनाना, कपड़े धोना और दीगर जिम्मेदारियों को निभाते निभाते मेरा सारा दिन निकल जाता था और मैं रात तक थक कर चूर हो जाती थी, क्योंकि घर के काम खत्म ही नहीं होते थे। रात को जब माजिद के आने का वक्त होता तो तभी मैं किचन में खाना बना रही होती और गरम गरम रोटियां पकाकर रख रही होती। जब माजिद आता तो मुझे पसीने में नहाया हुआ देखता तो उसे नागवारी महसूस होती। शुरू में तो उसने सब बर्दाश्त कर लिया, लेकिन एक दिन कहने लगा, समीना, हमारी शादी को अभी इतना वक्त नहीं हुआ कि तुम इस तरह की हालत में मेरे सामने आओ। मेरा दिल करता है कि जब मैं शाम को घर पर आऊँ तो मुझे तुम्हें तरोताजा मिलो, अच्छी तरह से तैयार हुई मिलो, लेकिन तुम तो किचन में ही घुसी होती हो। तुमसे प्याज और लहसुन की बू आती है, तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? अभी तो 1 महीना ही हुआ है हमारी शादी को और ऐसा लग रहा है कि जैसे 10 वर्ष गुजर चुके हैं। माजिद ने मुझे बुरी तरह से ताड़ दिया तो बेख्तियार मैं रोने लगी और उससे कहा, मैं क्या करूं? मैं बहुत कोशिश करती हूं कि सारा काम वक्त पर खत्म कर लूं, लेकिन फिर भी अम्मा एन टाइम पर कोई न कोई काम निकाल कर दे देती हैं, तो मैं उन्हें इनकार नहीं कर पाती। सारा दिन घर के कामों में गुजर जाता है और शाम तक मैं बेहद थक जाती हूँ। मैंने कभी अपने घर पर इतना काम नहीं किया। यहाँ पर आकर जब से करने लगी हूँ अब से मैं बहुत थक जाती हूँ। मैंने जब माजिद से ये सब कहा तो वो मुझे तपकने लगा और कहने लगा, मैं अम्मा से कहूँगा कि वो तुम्हारी मदद करवा देंगी, इस तरह तुम्हें भी काम महसूस नहीं होगा। माजिद ने जब मुझसे कहा तो मैं सर हिलाकर मुस्कुरा दी। मैंने दिल ही दिल में ये अज़म किया कि मैं कल माजिद के लिए जरूर तैयार होंगी और उसे सरप्राइज दूंगी। लेकिन अगले दिन माजिद ने सुबह दफ्तर जाने से पहले जब अपनी अम्मा से ये बात कही कि समीना की मदद करवा दिया करें, वो अकेली थक जाती है, तो उसकी अम्मा तो जैसे हत्थे से ही अकड़ गई और माजिद से कहने लगी, अरे तुम तो शादी होते ही चोरों के गुलाम बनकर रह गए हो, इसकी जुबान बोलने लगे हो। ये सारे काम तुम्हारी माँ इतने अरसे से तो कर रही थी, वो तो आज तक ना थकी।
और तुम्हारी बीवी चंद दिनों में ही थक गई। ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर वो जिम्मेदारी उठाएगी तो पूरी उठाएगी, वरना हाथ झाड़ कर साइड पर हो जाए। मैं जो इतने बरसों से ये सब करती आ रही हूँ, अब भी करती रहूंगी। अपनी माँ की बात सुनकर माजिद खामोशी से दफ्तर चला गया, क्योंकि वो जानता था कि अगर माँ जिद पर आ गई तो वो फिर मुझे घर का कोई काम नहीं करने देंगी और वो घर का सारा काम खुद करती रहेंगी और कुड़ती रहेंगी। माजिद तो दफ्तर चला गया, लेकिन उसकी माँ ने जैसे मुझसे बेर बांध लिया और सारा दिन मुझे बातें सुनाती रही। मैं चुपचाप अपने कामों में लगी रही और अपने आंसू जब्त करती रही। लेकिन कब तक? शाम तक मेरी भी बर्दाश्त जवाब दे गई और तभी उनके एक ताने के जवाब में मैंने उन्हें कहा कि हमारे घर में तो सिर्फ 6 रोटियां बनती थी, हर फर्द सिर्फ 1 रोटी खाता था, लेकिन यहाँ पर तो टोकरा भर कर रोटियां पकाई जाती हैं। मैं अब समझी हूँ कि माजिद ने सारी जिंदगी कमाई की, लेकिन क्यों नहीं कुछ बना सका। मेरी बात सुनकर मेरी सास तो जैसे तड़प ही उठी। इतनी देर में माजिद के घर आने के वक्त हो रहा था। मैंने घड़ी देखी तो फौरन कपड़े तब्दील करने के ख्याल से कमरे में आ गई और फिर हल्का फुल्का तैयार होने लगी। माजिद कब बाहर आया मुझे खबर नहीं हुई। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो माजिद के तेवर देखकर परेशान हो गई। वो गुस्से में मुझे ही घूर रहा था और उसने मेरी तैयारी को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया और मुझे कहने लगा, तुमने अम्मा से बदतमीजी की है, तुम्हें उनसे माफी मांगनी होगी। माजिद की बात सुनकर जैसे मैं ठग गई। बेख्तियार अपने शोहर की आंखों में आंखें डालकर देखा, जहां पर उस वक्त मेरे लिए अजनबियत और गुस्से के अलावा कुछ भी नहीं था। तभी माजिद ने मुझे कहा, मैंने तुमसे कुछ कहा है, अम्मा से माफी मांगो। लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी और उसे कहा, मैं अम्मा से माफी नहीं मांगूंगी क्योंकि मैंने कोई गलत बात नहीं कही। वो सारा दिन मुझे बातें सुनाती रही, मैं आखिर कब तक बर्दाश्त करती। मैंने सिर्फ उनकी बात का जवाब दिया है, इसलिए मैं अब उनसे माफी नहीं मांग सकती। तुम उन्हें जाकर कह दो। ये कहकर मैं पैर पटकती हुई अपने कमरे में आ गई और इधर उधर गुस्से से टहलने लगी। मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि माजिद की माँ उसके इस तरह कान भरेगी। उस वक्त मेरा भी गुस्से से बुरा हाल था और मैं भी एक जज्बाती कैफियत से गुजर रही थी। तभी माजिद मेरे पीछे ही कमरे में चला गया और कहने लगा, ठीक है, अगर तुम अम्मा से माफी नहीं मांगोगी तो तुम यहाँ पर रहने के हकदार नहीं, अपने घर वापस चले जाओ और दोबारा कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। माजिद ने ये कहकर अपना रुख फेर लिया और मैं बेहद हैरानी से उसकी पुश्त को देखती रही। यकीन नहीं आ रहा था कि माजिद ने मेरे साथ ऐसा किया है। मैंने भी कुछ नहीं सोचा और बिना सोचे समझे घर से निकल आई। आंसुओं में डूबे हुए जब मैंने अपनी माँ को सारी बातें सुनाई तो वो जैसे चुप कर गई, लेकिन कहने लगी, तुमने आने में जल्दी की, तुम्हें चाहिए था कि अपनी सास से माफी मांग लेती। ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं थी कि इसके लिए ऊपर घर खराब किया जाए। अपनी माँ की बात सुनकर मैं तो जैसे ही उछल ही पड़ी और कहा, अम्मा किस बात की माफी मांगती? आखिर आपने उस औरत की ज़बान सुनी है? वो मुझे इतनी बातें सुना रही थी और बगैर किसी वजह के सुनाई जा रही थी, तो मैं कब तक बर्दाश्त करती? मैंने एक जवाब दिया और उसने माजिद को मेरे खिलाफ भड़का दिया और मेरा शोहर मट्टी का भी ऐसा माधु कि उसने मेरी बात ही नहीं सुनी और मुझे सीधा घर से निकालने का कह दिया। मैं अब कभी उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। मैंने न रोटेपन से अम्मा से कहते हुए अपने कमरे की राह ले, जहाँ पर मैं शादी से पहले रहा करती थी, लेकिन नहीं जानती थी कि शादी के बाद बेटियाँ पराया दोनों हो जाती हैं और वालिदैन के घर में मेहमानों की तरह हैं। मेरी बहनें भी मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई अजनबी हूँ, लेकिन मैंने सब कुछ नजरअंदाज किया और अपने बिस्तर पर आकर लंबी तान कर सो गई। अगले दिन मेरी तबीयत कुछ गिरी गिरी सी थी। यूं लग रहा था कि जैसे सर भारी हो रहा है। नाश्ता करने के लिए बैठी तो अभी 2 निवाले ही डाले थे कि एकदम से उल्टी की शिकायत हुई और मैं भागते हुए बेसन की तरफ चली गई। उल्टी करके आई तो तबीयत कुछ हल्की और निढाल हो गई थी। दोबारा नाश्ते की तरफ देखने को दिल भी नहीं किया। अम्मा ने मेरी हालत देखी तो पूछने लगी, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत क्यों खराब है? जबकि मैंने उन्हें कहा, अम्मा 2-3 दिन से ही गिरी गिरी सी लग रही थी और सर भी भारा हो रहा था। अब न जाने नाश्ता करते हुए क्या हुआ कि उल्टी आ गई। मैंने अम्मा से कहा तो अम्मा कहने लगी, ऐसा कब से हो रहा है? मैंने बताया तो 3 दिन से ऐसा महसूस हो रहा है। तभी अम्मा पूछने लगी, क्या तुमने किसी डॉक्टर को चेक करवाया? अम्मा के इस तरह पूछने पर मैं चौंक पड़ी और एक ख्याल से मेरे दिल में गद गद सी होने लगी। मैंने आहिस्ता से नफी में सर हिलाया
तो अम्मा कहने लगी, कुछ खा लो फिर मेरे साथ डॉक्टर पर चलना। अम्मा ने संजीदगी से मुझे कहा और अपने काम में मसरूफ हो गई, जबकि मैं उस बारे में सोचने लगी जो अम्मा का ख्याल था। क्या वाकई मैं माँ बनने वाली हूँ? क्या वाकई ये उस बात की अलामत हैं? और अगर मैं माँ बनने वाली हूँ तो मेरा और माजिद का रिश्ता किस तरह परवान चढ़ेगा, किस करवट बैठेगा? मुझे अभी कुछ पता नहीं था। ये भी हो सकता था कि अम्मा का ये सिर्फ ख्याल ही हो, मेरी तबीयत वैसे ही खराब हो। लेकिन अम्मा मुझे नाश्ते के बाद फौरन ही डॉक्टर के पास ले गई और डॉक्टर ने तस्दीक कर दी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये एहसास ही बड़ा गदगदाने वाला और मैं बेहद खुश थी। ये मेरी जिंदगी की पहली खुशी थी। तभी अम्मा ने माजिद को फोन करके बताने का कहा। मैं पहले तो इनकार कर गई, लेकिन फिर ये सोचकर माजिद को फोन कर लिया कि ये उसका हक है। ये मेरा और माजिद का बच्चा है और हमें उस बच्चे की खातिर एक साथ रहना होगा। ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो हर घर में होती रहती हैं, हमें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। इसलिए मैंने माजिद को फोन करके जब ये बताया था तो वो जैसे खुशी से बेकाबू हो गया और उसका बस ही नहीं चल रहा था कि वो अभी उड़कर मेरे पास आ जाए। तभी उसने मुझे कहा कि शाम को तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। और मैंने मुस्कुराते हुए फोन बंद कर दिया। शाम को माजिद के आने से पहले मैं अच्छी तरह तैयार हुई कि अम्मा भी मुझे देखकर खुश हो गयी। माजिद आते हुए मिठाई ले आया था और अम्मा और बाकी घर वालों का मुंह मीठा करवाया। मेरा ख्याल था कि जब मैं ससुराल पहुंचूंगी तो माजिद की माँ भी इसी तरह खुशी का इजहार करेंगी और हमारी बलाएं लेंगी। लेकिन अम्मा का तो वही रवैया था और उनका वही अंदाज था। ना तो उन्होंने हमें मुबारकबाद दी और ना ही उन्होंने इस बात पर खुशी का इजहार किया, बल्कि एक सर्द रवैया हमसे कायम किए रखा, जिसकी वजह से मेरा दिल बुझ सा गया था। ताहम माजिद की खुशी को देखते हुए मैं भी मुस्कुरा दी थी। वक्त इसी तरह गुजर रहा था और मेरे ये 9 महीने माजिद की वजह से आसानी से गुजर गए। वरना माजिद की माँ ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि वो मुझे घर का सारा काम करवाती थी और किसी पल सुकून नहीं लेने देती थी। अगर माजिद कभी ये कहता भी कि आप समीना से अपना काम ना करवाएं, बल्कि घर पर एक काम वाली रख लें, तो माजिद की माँ ये कहती कि मैंने भी तो इतने बच्चे पैदा किए हैं, घर का सारा काम भी करती थी और बाजार से सौदा भी लाती थी। ऐसे में हर औरत को अल्लाह ताला मजबूती अता करता है। तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक होगा और मैं जो कर रही हूँ तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की आसानी के लिए कर रही हूँ। माजिद की माँ ने उसे यकीन दहानी करवाई। ये वक्त हिम्मत के साथ 9 महीनों के बाद मैंने खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया। माजिद तो बेटी को पाकर बहुत खुश था और मेरा शुक्रिया अदा करते नहीं थक रहा था। माजिद ने ही अपनी बेटी का नाम ईमान रखा था। वो मेरी बेटी 2 महीनों की हुई तो मैं दोबारा से घर के कामों में मसरूफ होने लगी। मेरी सास तो उसे देखना भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि उन्हें बेटी पसंद नहीं थी, जबकि माजिद की जान तो कैद थी अपनी बेटी में और वो भी अपने बाप को जैसे पहचानती थी। जब माजिद को देखती तो खिलखिला उठती। ईमान अभी 3 महीने की हुई थी जब एक दिन अचानक घर पर आने वाली एक फोन कॉल ने हम सबको क़यामत याद दिला दी थी। उस फोन कॉल में बताया गया कि माजिद का एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में दाखिल है, फौरन पहुंच जाएं। ये सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। कदमों तले से जमीन निकल गई थी और मैं वहीं पर बैठकर रोने लगी थी। माजिद मुझे छोड़कर किसी और दुनिया का मुसाफिर बन चुका था और मैं ईमान को लेकर बैठी रह गई थी। माजिद के गम ने मुझे अंदर से खाली कर दिया था, लेकिन मेरी सास ने मुझे वो गम भी सही तरीके से मनाने नहीं दिया और मुझे मनहूस कहकर उस घर से निकाल दिया। मैं एक बार फिर से अपने माँ बाप के घर पर आ चुकी थी, जिनके अश्क मुझे देखकर रुकते नहीं थे। मेरे ऊपर ये वक्त बहुत ज्यादा कठिन था। जैसे ही मेरी इद्दत खत्म हुई तो मैंने ये सोच लिया था कि मुझे किसी काम की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह अपने घर वालों पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मेहमान की जिम्मेदारी खुद उठाना चाहती थी। इसलिए मैंने अपनी सहेलियाँ आसिया से काम की तलाश के बारे में कहा। क्योंकि मैं सिर्फ मैट्रिक पास थी, मैंने ज्यादा तालीम नहीं हासिल की थी, इसलिए मुझे मालूम था कि मुझे कहीं पर भी अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। आसिया एक बड़े बंगले में मुलाजमत करती थी, इसीलिए तो उसने मुझे यकीन दहानी करवाई थी कि वो जल्द ही मेरे लिए काम का बंदोबस्त कर देगी और मैं मुतमईन हो गई थी। आसिया ने अपने कहे के मुताबिक कुछ दिन बाद ही मुझे काम के बारे में बताया, लेकिन ये काम सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि ये काम एक दाई का था और एक छोटे से बच्चे को दूध पिलाने का काम था। मैं आसिया से हैरत से बोली, अरे कैसी माँ है जो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती। मेरी बात सुनकर आसिया मुस्कुरा दी और कहने लगी, बड़े घरों में ऐसा ही होता है।
दूध पिलाने के लिए औरत को मुलाजमत पर रखते हैं, तुम्हें भी दिन में वहीं पर रहकर अपने बच्चे की तरह उस बच्चे को। आसिया ने जब मुझसे ये कहा तो ये सोचकर हामी भर ली कि आराम से बैठकर करने वाला काम है और फिर कौन सा हर वक्त उसमें मसरूफ रहना है। बच्चा दिन में ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 मरतबा दूध पी लेगा और वैसे भी इसकी तनख्वाह भी अच्छी थी। यही सोचकर मैंने हामी भर दी थी और आसिया के साथ अगले ही दिन काम पर चली गई। मैं ईमान को भी साथ ले गई थी क्योंकि आसिया ने कहा था कि उसने पहले ही बेगम साहबा से बात कर, ईमान भी वहीं तुम्हारे साथ ही हुआ करेगी। ये सुनकर मैं खुश हो गई और बेख्तियार आसिया की मशगूल हुई। अगले दिन जब मैं बंगले में काम पर पहुंची तो बंगले को देखकर हैरान रह गई थी। सामने एक बारोब किस्म की बेगम साहबा खड़ी थी। मैंने उन्हें झुकते हुए सलाम किया था। उन्होंने भी मुझे सर से लेकर पांव तक देखा और कहने लगी, कल से साफ लिबास में आना। अगर तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं तो मैं तुम्हें आज ही नए कपड़े मंगवा दूंगी। उन कपड़ों को पहन कर आना क्योंकि तुमने मेरे बच्चे को दूध पिलाना है और मैं चाहती हूँ कि तुम साफ सुथरी नजर आओ। ये कहकर वो अंदर की तरफ बढ़ गई जबकि मैं शर्मिंदा सी हो गई। तब उन्होंने मेरा तारुफ अहमद से करवाया। अहमद चंद दिनों का बच्चा था, बेहद खूबसूरत था, जैसे अंग्रेजों के बच्चे होते हैं। मैंने बेख्तियार ममता के हाथों मजबूर होकर उसे अपनी गोद भर लिया। बेगम साहबा ने जब मेरा ये अंदाज देखा तो वो जैसे मुतमईन सी हो गई और कहने लगी, अहमद काफी देर से रो रहा था, तुम उसे दूध पिला दो, तब तक मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ भिजवा देती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। मैंने बेख्तियार शुक्र अदा किया क्योंकि मैं घर से नाश्ता करके नहीं आई थी। टेंशन की वजह से मुझे भूख ही नहीं लगी थी और वैसे भी मेरे साथ ही मां थी जो अब 6 महीने की हो गई थी और मुझे उसकी भी फिक्र थी कि साथ साथ उसे भी कुछ खिलाती रहूं। बेगम साहबा ने ये कहकर मेरे ऊपर जैसे एहसान कर दिया था। मैं खामोशी से बैठकर अहमद को दूध पिलाने लगी। वो दूध पीते हुए सो गया। मैंने उसे आहिस्ता से उसके बिस्तर पर लेटा दिया और टपकते हुए उसके ऊपर पतला कंबल उड़ा दिया। जब तक बेगम साहबा दोबारा देखने के लिए आई तो तब तक अहमद सो चुका था। वो बहुत हैरान हुई और कहने लगी, अरे ये तो सोता ही नहीं है, बहुत तंग करता है और तुम्हारे पास कितने आराम से सो गया। बेगम साहबा ने जब ये कहा तो मैं मुस्कुरा दी और उनसे कहा, ये ममता की जबान समझता है इसलिए जल्द सो गया। मेरी बात पर बेगम साहबा ने मुझे बड़ी अजीब सी नजरों से देखा कि मैं शर्मिंदगी सी हो गई। पहला दिन मेरा बहुत ही अच्छा गुजर गया था और पहले दिन के बाद मेरी झिझक भी खत्म हो गई थी। मैं अब रोज बंगले पर काम करने के लिए जाती थी। ईमान को भी मेरे साथ चली जाती और कभी अम्मा उसे रोक लेती, लेकिन मैं अब मुतमईन हो चुकी थी और बेधड़क से ये नौकरी करने लगी थी। लेकिन अभी मुझे यहाँ पर नौकरी करते हुए 2 महीने हुए थे जब एक दिन बेगम साहबा ने बड़े घबराए हुए अंदाज में मुझे कहा, समीना तुम अहमद को ले जाओ और यहाँ से कहीं दूर चली जाओ, मैं तुम्हें मोटी रकम दे दूंगी, अहमद का ख्याल रखना, जब तक मैं ना कहूँ वापस मत। बेगम साहबा की ये बात सुनकर मैं घबरा गई और उनसे पूछा, क्या हुआ बेगम साहबा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? जबकि वो कहने लगी, देखो मेरा शोहर अहमद को अपना बेटा नहीं समझता, वो समझता है कि ये किसी और का बच्चा है, इसी वजह से वो इसे मारने के दर पे है। वो चाहता है कि ये बच्चा मर जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। अहमद मुझे बहुत, इसीलिए तुम ऐसा करो, इसे यहाँ से ले जाओ और कहीं दूर चली जाओ। मैं तुम्हें बता दूंगी जब हालात बेहतर हुए तो वापस इसे ले आना। बेगम साहबा ने मुझे कहा और मैं एकदम मेरे हाथों में अच्छी खासी रकम पकड़ा दी। अहमद को मुझे दिया और उसे ले जाने का कहा। बेगम साहबा की बात सुनकर मैं इतनी हवास बाख्ता हो गई थी कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने बिना सोचे समझे अहमद को लिया और चली आई। पहले तो ख्याल आया कि घर चली जाती हूँ और अम्मा को सब कुछ बता देती हूँ, लेकिन फिर ये सोच कर रुक गई कि अगर घर चली गई तो कहीं साहब उधर भी ना पहुँच जाए, इसलिए मैं आसिया की तरफ चली आई। आसिया को मैंने सारी बात के बारे में बता दिया, जिसे जानकर वो बहुत परेशान थी और कहने लगी, ये तो बहुत गलत बात है, तुम्हें इस तरह अहमद को नहीं लाना चाहिए, ये ना हो कि बाद में तुम्हारे ऊपर कोई मसला बन जाए। उसने परेशानी से कहा तो मैंने दहल कर उससे पूछा, क्या मसला बनेगा? तुम मुझे अच्छी तरह तो जानती हो मेरा दिल कितना नर्म है और ये बच्चा भी तो कितना मासूम है। पहले दिन से ही मुझे इससे उनसियत सी होने लगी थी, लेकिन उसकी माँ ने जब मुझे ये सब कुछ बताया तो मेरे तो हाथ पैर फूट, इसीलिए मैं इसे अपने साथ ले आई हूँ। मैंने अपने अमल की वजाहत पेश करते हुए कहा,
तो आसिया सर हिलाकर रह गई, ताहम कहने लगी, अब तुम अपने घर नहीं जा सकती हो, इसलिए बेहतर यही है कहीं और एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर रह लो। मैं इसमें तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगी। आसिया की मदद से ही मुझे एक छोटा सा कमरा किराए पर मिल गया और मैं वहाँ पर रहने लगी। अहमद को भी मैं पालती, ईमान भी मेरे साथ हुई थी। दोनों बच्चों के साथ मेरा दिल बहल गया था। बेगम साहबा ने मुझे इतनी रकम जरूर दी की थी मैं चंद महीने आराम से बैठकर खा सकती, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मुझे साथ साथ काम भी करना चाहिए ताकि बच्चों के बेहतर अंदाज में पाल सकूं। लेकिन बच्चों की मसरूफियत की वजह से मुझे अभी तक कोई काम नहीं मिल सका। अहमद को मेरे पास आए हुए 6 महीने हो गए थे। वो अब 7 महीनों का एक प्यारा सा बच्चा था, लेकिन उसी दौरान उसे बदलते हुए मौसम की वजह से अचानक बुखार हुआ, जिसके बाद उसकी तबीयत बहुत खराब होने लगी और वो बहुत बीमार हो गया। मैं बेहद परेशान हुई, अहमद को दवा ला कर दी, लेकिन उससे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। इतने दिन हो गए थे और बच्चा बुखार में तप रहा था और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि किसी डॉक्टर के पास चेक करवा सकूं। अच्छी दवा ले आती। मैं अल्लाह के आगे रो पड़ी, गिरा पड़ी और कहा, या अल्लाह अहमद को ठीक कर दे। मेरे पास ये बच्चा इमानत है, अगर बेगम साहबा किसी दिन मुझसे लेने के लिए आई तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। मैंने रोते गिड़गिड़ाते हुए अल्लाह से दुआ मांगी। मेरा तो उस दिन से दिल ही बैठ चुका था। अहमद की यह हालत देखकर मैं बेहद परेशान थी और समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह से ठीक कर दूं। तभी अल्लाह के आगे फरियाद करते हुए अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया, जिसने मुझे चौंका दिया और मैंने सोच लिया कि मुझे अब इसी ख्याल पर अमल करना होगा। शायद ये अल्लाह की तरफ से कोई गैबी इशारा हो, क्योंकि उस वक्त मैं जाए नमाज पर बैठी हुई थी, इसलिए मैंने इस ख्याल पर अमल करने का। अहमद को अच्छी तरह कंबल में लपेटा, ईमान को साथ लिया और उसी बंगले में चली आई जहाँ पर मैं मुलाजमत करती थी। गो कि मुझे नहीं पता था कि मेरे इस अमल से क्या फायदा होगा या क्या नुकसान होगा। मैं नहीं जानती थी कि इसके बाद अहमद की जिंदगी बाकी रहती है या नहीं, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मुझे एक दफा ये रिस्क लेना ही चाहिए। अगर मैं अहमद को बंगले पर ना लेकर आई तो शायद इस तरह उसकी जान चली जाएगी। बुखार की वजह से वो अपनी जिंदगी की बाजी हार जाएगा। यही सोचकर मैं बंगले पर चली आई और वहाँ पर मेरा सबसे पहले साहब के साथ सामना हुआ। साहब ने जब अहमद को देखा तो बेख्तियार थक गए। उनकी आंखों में एक कर्ब सा दिखाई देने लगा और मिलने की खुशी उनके चेहरे पर चमकने लगी। वो एकदम आगे बढ़े। उन्होंने अहमद को मेरी गोद में देखा तो एकदम मुझे भी अपने साथ लगा लिया और कहने लगे, तुम्हारा शुक्रिया समीना, तुम मेरे अहमद को वापस। मैंने कहाँ नहीं ढूंढा इसे। साहब ये कहते हुए रोने लगे, जबकि मैं हैरत से उनका चेहरा देखने लगी। उनके चेहरे पर उस वक्त एक बाप जैसी शफकत फैली हुई थी और उस वक्त वो बेहद खुश दिखाई दे रहे थे। तब मैंने उनसे कहा, साहब मैं ये बच्चा आपके हवाले नहीं करूंगी, आपसे इस बच्चे की जान को खतरा है, बेगम साहबा को बुला दें। अहमद बहुत बीमार है और मुझे इसका इलाज करवाना है। मैं बेगम साहिबा से मिलने आई हूँ, मैं उनकी इमानत इस तरह किसी और के हवाले नहीं कर सकती। मेरी बात सुनकर साहब बोले, तुम्हारी बेगम साहिबा अब यहाँ नहीं रहती। तुमने जिस दिन से अहमद को तुम्हारे हवाले किया है, तुम्हें यहाँ से भेज दिया, मैंने भी उसे घर से निकाल दिया था। मैं उस दिन से उस औरत की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। मैंने झूठ बोलकर अहमद को तुम्हारे हवाले कर दिया। साहब ने जब ये मुझसे कहा तो मैं हैरत से उनका चेहरा देखने लगी। कैसा झूठ, कौन सा झूठ? और उसके बाद हमने जो कुछ बताया वो मेरे कदमों से जमीन निकाल देने के लिए काफी था। साहब कहने लगे कि तुम्हारी बेगम साहबा के साथ मेरी पहली शादी थी और मैं बहुत खुश था, क्योंकि तुम्हारी बेगम साहबा मेरी पसंद की थी और मैंने अपने घर वालों से टक्कर लेकर उससे शादी की थी। लेकिन फिर शादी के 7 वर्ष गुजर जाने के बाद जब हमारी औलाद नहीं हुई तो मेरे घर वालों ने मुझे बहुत ज्यादा मजबूर करना शुरू कर दिया कि मैं दूसरी शादी कर लूं। लेकिन मैं अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करता था, इसी वजह से उसे कोई दुख नहीं देना चाहता था। लेकिन घर वाले भी दुरुस्त थे, मेरी औलाद होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने इसका ये हल सोचा कि मैं कोई बच्चा गोद ले लेता हूँ। लेकिन जब मैंने ये हल अपने घर वालों के सामने रखा तो किसी ने भी उसे नहीं माना। सबका यही कहना था कि अपनी औलाद ही अपनी होती है, किसी पराई की औलाद को पाल कर अपना बनाना बहुत मुश्किल काम है और फिर वो औलाद अपनी बनती। मेरे घर वालों की मुख्तलिफ तावीलों और वजाहतों के बाद मैंने इस इरादे को मुलतवी कर दिया और तभी घर वालों ने दोबारा मुझ पर शादी का जोर दिया। इसीलिए फिर एक दिन मैंने अपनी बीवी को एतमाद में लेते हुए इससे बात की और कहा कि मैं अभी घर वालों की मर्जी से दूसरी शादी कर लेता हूँ, लेकिन जब उसमें मेरा बच्चा होगा तो मैं तुम्हारी गोद में डाल दूँ और उसे तलाक दे दूंगा। यही सोचकर मेरी बीवी ने
इस बात को मान लिया और कहने लगी, ठीक है, आप ऐसा ही करें तो मैं इसमें आपका साथ दूंगी, लेकिन अगर आप बदल गए तो मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, आपको छोड़ दूंगी। मैंने अपनी बेगम की बात मान ली। घर वालों ने एक सादी सी लड़की को देखकर मेरा निकाह कर दिया। मैं मुतमईन हो गया क्योंकि लड़की बहुत सादा थी और सीधी सादी थी। मेरा ख्याल था कि इससे बच्चा लेकर अपनी पहली बीवी की गोद में डाल दूंगा और इसे छोड़ दूंगा। कुछ अरसे तक जब वो माँ बनने वाली हुई तो मैं खुश हो गया, क्योंकि कुछ भी हो वो मेरी जिंदगी की पहली खुशी थी। मेरा पहला बच्चा था, इसलिए मैंने इसका बहुत ख्याल रखा और उसे हर तरह की सहूलत दी। 9 महीनों बाद जब उसने अहमद को जन्म दिया तो मैं अस्पताल से बच्चा उठा लाया और तुम्हारी बेगम साहबा की गोद में डाल दिया। मुझे आज भी इस ख्याल पर शर्मिंदगी आती है कि मैंने कैसे पैदा होते ही एक बच्चे को उसकी माँ से दूर कर दिया। जब वो होश में आई, उसने पहला सवाल अपने बच्चे के बारे में पूछा। मैंने उसे ये कहकर झूठ बोल दिया कि बच्चा मुर्दा पैदा हुआ था और वो किस्मत की सितम ज़रीफी पर फूट फूट कर रोती रही। मैं उसे तसल्ली और दिलासा भी नहीं दे सका, क्योंकि मेरे दिल में शर्मिंदगी सर उठा रही थी और अपने अमल पर मुझे बहुत ज्यादा बुरा महसूस हो रहा था। अहमद को पैदा होने के कुछ दिनों के बाद मैंने उसे तलाक दे दी और एक अच्छी खासी रकम उसे हक महर के तौर पर दी थी, ताकि वो अपनी अगली जिंदगी आराम से गुजार सके। अहमद को चूंकि मैंने अपनी पहली बीवी की गोद में डाल दिया था, उसने शुरू के कुछ दिनों में अहमद का ख्याल रखा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अहमद की तरफ से काफिल होती गई। अहमद अक्सर बीमार रहने लगा और चिड़चिड़ा होने लगा और माँ की अदम तवज्जो की वजह से वो हर वक्त रोता रहता था। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की और कहा कि अहमद का ख्याल रखो, लेकिन अचानक वो किस मिट्टी की औरत ने अहमद का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा और फिर उसके दिल में ख्याल आया कि अहमद के लिए एक आया का बंदोबस्त कर लिया जाए, और तब भी उसने तुम्हें आया के तौर पर रखा। और जब कुछ दिनों के बाद उसने प्लानिंग के तहत अहमद को तुम्हें दे दिया और यहाँ से भेज दिया, तो मैं उस दिन से उसके ऊपर बहुत चीखा चिल्लाया था, जबकि उसने रोते हुए मुझे यही कहा कि उसका कोई कसूर नहीं है, बल्कि वो आया ही अहमद को लेकर भाग गई। मेरे नजदीक ये बात काबिल कबूल नहीं थी, क्योंकि गेट पर हर वक्त चौकीदार होता था और घर वालों की मर्जी के बगैर बच्चा बाहर नहीं जा सकता था। फिर कुछ दिनों के बाद ही मुझे घरेलू मुलाजमा के दोस्त से ये बात पता चली कि उसने खुद अहमद को तुम्हारे हवाले किया और रकम देकर कहा था कि उसे कहीं दूर ले जाओ। मैंने बहुत तुम्हें ढूंढा, लेकिन तुम्हारा कुछ पता नहीं चला। मैं सब्र शुक्र करके बैठ गया था और अल्लाह से रोज दुआ करता ताकि वो किसी तरीके से तुम्हारे दिल में रहम डाल दे और अहमद को मेरे पास वापस ले आए। और देखो, आज अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। साहिब ने जब मुझे ये सब कुछ बताया तो मैं हैरान रह गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि बेगम साहबा ऐसे करेंगी। तभी मैंने साहब से माफी मांगी और उनसे कहा कि मुझे माफ कर दें। मुझे तो बेगम साहबा ने जो कुछ कहा था मैंने उसी पर अमल किया, लेकिन अब यकीन करें कि मैंने अहमद को अपने बच्चे की तरह पाला है, उसका बहुत ख्याल रखा। अब भी अगर ये इस तरह बीमार ना होता तो शायद मैं यहाँ पर ना आती। साहिब ने अहमद को मेरे हाथों से ले लिया और मुझे अस्पताल चलने का कहा और मैं अहमद को लेकर अस्पताल आ गई। फौरी इलाज की बदौलत अहमद की तबीयत काफी बेहतर हो गई थी। साहिब ने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया और अहमद की आया के तौर पर मुझे तैनात कर लिया और मैं घर में ही रहने के लिए कमरा दे दिया। मैं अब इसी बंगले में रहती हूँ और अहमद का ख्याल रखती हूँ। यहाँ पर मुझे खाना पीना रहना सब कुछ मैसर है और इसके अलावा एक बड़ी रकम तनख्वाह के तौर पर भी मिलती है। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे रब की, जिसने मुझे पर वक्त सही फैसला करने की तौफीक दी और मैं सच्चाई जान। अगर मैं बेगम साहिबा की हदायत पर अमल करते हुए अहमद को अपने पास ही रखती और वापस ना लेकर आती तो शायद मैं साहिब की मुजरिम होती। मुझे आज भी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।